Welcome to DSS online classes. Mathematics class 10 coordinate geometry exercise 7.2. We have already discussed in previous video first three questions. The question number 4 is now find the ratio in which the line segment joining points -310, -310 and 6 -8 is divided by -16. यानी कि लाइन सेगमेंट ए बी जिसका कोऑर्डिनेट -310 है और 6 -8 है, ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? पी किस रेशियो में इसे डिवाइड कर रहा है? तो लेट द पॉइंट पी डिवाइड ए बी इन रेशियो m/n, m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो नाउ राइट द फॉर्मूला आप लिखेंगे। डिवीजन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। Here the value of x is -1. The value of x is -1. So that is -1 is equal to m. We have to find m. m की जगह m लेंगे। x2 that is 6 plus n value of x1 -3 upon m plus n। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -m इज इक्वल टू 6m -3m। m को एक तरफ कर दें, m को एक तरफ करें तो दैट इज -m। इस 6m को इधर ट्रांसपोज कर दें आप तो -6m इज इक्वल टू -3m। ये n उधर ट्रांसपोज होगा तो +m, that is -7m is equal to -2m। माइनस will cut off by minus, n को इधर ट्रांसपोज करें तो m by n is equal to 2 here upon 7। So the ratio is 2:7। Answer: the ratio is 2:7। Question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5, line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinate of the point of division. कह रहा है कि x एक्सिस से किस रेशियो में ये डिवाइड होगा। तो सबसे पहले ये जानें कि x एक्सिस पर कोई भी अगर हम पॉइंट लेते हैं उसका ऑर्डिनेट 0 होता है, यानी कि x की कोई वैल्यू होगी लेकिन y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेट द पॉइंट ऑफ x एक्सिस, लेट द पॉइंट on x-axis is x0। x0 इस पर कोई पॉइंट है, x0 पॉइंट है। पूछा जा रहा है कि ये किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ दो फॉर्मूले आते हैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, जिसको अगर आप मानते हो कि m और n के रेशियो में लिख एंड इट डिवाइडेड AB in ratio m ratio है। तो m ratio n में अगर डिवाइड कर रहा है तो ध्यान देंगे आप m ratio n। तो here there are two formula. First
is equal to m x2 plus n x1 divided by m plus, and second is y is equal to m y2 plus n y1 divided by m plus. Which formula we shall apply? कौन सी फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे? तो if we put this formula, the value of x is unknown. X is unknown. X मालूम नहीं है. M is also unknown. N is also unknown. So there are three variables which are unknown. So we can't solve the question. तो अगर इसको इस फॉर्मूले को पुट अप करते हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे. तो आइए इस फॉर्मूले को देखें. The value of y is 0. M and n both are unknown. ये दो unknown है. तो हम इस फॉर्मूले को पुट अप करें. तो जो कोऑर्डिनेट मालूम है उसी कोऑर्डिनेट को लेकर चलते हैं. तो here is y is equal to m y2 plus n y1 divided by m plus n. Putting the value of y is equal to 0 is equal to m की जगह m, y2, the value of y2 is 5 plus n into y1, the value of y1 is minus 5 upon m plus n. By cross multiplication, 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m plus n मिलेंगे 0, तो that is 0 is equal to 5m minus 5m. 5m ट्रांसपोज करेंगे, 5m is equal to 5m, इस 5 से 5 कट ऑफ हो जाएगा. इधर n को उधर ट्रांसफर करेंगे तो here is 1 is equal to m by 1. So that is 1 by 1. The ratio is 1:. Here we will get the value of m is equal to 1 and also n is equal to 1. Now we have to find the value of x. So putting this formula, x is equal to m x2 plus n x1 upon n plus 1. X is equal to m1 x2, the value of x2 is minus 4 plus n1, the value of x1 is 1. So 1 into 1 upon 1 plus 1. M की वैल्यू भी 1 है, n की वैल्यू भी 1 है. तो here minus 4 plus 1 divided by 2, that is minus 3 by 2. So show the coordinate of point is पहले x की वैल्यू minus 3 by 2 और then y की वैल्यू. Is it clear? Okay. Next question. Question number 6. If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in order. ये 4 कोऑर्डिनेट हैं, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं. टेकन इन ऑर्डर मींस क्रम से लिए गए हैं. A, B, C, D ये पैरेललोग्राम लिया. फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1, 2 A का है कोऑर्डिनेट, सेकंड 4y, सेकंड B का है 4, y एंड थर्ड x, 6 एंड लास्ट 3, 5. कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. इस क्वेश्चन पर एक चीज ध्यान देना, जब इस तरह के किसी कोऑर्डिनेटर के ये 4 वर्टिसेस दिए गए हों, इसमें 2 अननोन हो, जैसे x अननोन है, y अननोन है, उसे हमें फाइंड आउट करना है.
अब कोऑर्डिनेटर के टाइप्स क्या दिए गए हों, या तो पैरेललोग्राम हो, या रेक्टेंगल हो, या स्क्वायर हो, या रोम्बस हो। तो इसमें कुछ नहीं सोचना है, बस यही करना है, उसकी एक प्रॉपर्टी होल्ड कराना है कि डायगोनल आर बाइसेक्ट की जाता है। पैरेललोग्राम के डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल्स के डायगोनल भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर एंड द डायगोनल ऑफ रोम्बस आल्सो बाइसेक्ट ईच अदर। तो हियर इन पैरेललोग्राम, सो द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर ओ परफेक्ट। और इनका कोऑर्डिनेट आप कुछ भी मान सकते हो। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ कोई ए कमा बी, एक्स वाई नहीं लेंगे हम, इसलिए कि एक्स वाई फाइंड आउट करना है, एक्स वाई नहीं लेंगे, एक्स वाई को छोड़ करके बी ले लिया। हियर O is point where diagonal of AC and BD bisect each other. Let the coordinate of O A AB A comma B. Here you know that O is the midpoint of AC. Bisect करता है, जितना OA है उतना ही OC है, bisect करता है तो O is the midpoint of AC. तो now O is midpoint of AC. AC का midpoint है तो so A इक्वल हो जाएगा x1 plus x2, 1 plus x, 1 plus x by 2, and B इक्वल हो जाएगा y1 plus y2, 2 plus 6 by 2, that is 4. A और B निकल गया। एक और लाइन लिखेंगे कि O is also midpoint of BD. O is also midpoint of BD. BD का midpoint है तो सो इधर से अगर यहां से देखेंगे तो A इक्वल टू क्या होगा, A इक्वल टू हो जाएगा x1 plus x2, 3 plus 4 by 2, 3 plus 4 by 2, that is 7 by 2, and B इक्वल टू 5 plus y, 5 plus y by 2. Here you find the two value of A, one value is 1 plus x by 2 and other value is 7 by 2. Both are same, दोनों सेम हैं क्योंकि ये पॉइंट तो सेम है, दोनों सेम हैं। तो लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि बोथ आर सेम, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग इधर लिख देते हैं, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कंपेयर कर दिया तो यहाँ से A की वैल्यू लिया 1 plus x by 2, 1 plus x by 2 is equal to A की वैल्यू 7 by 2, 2 से 2 कट ऑफ हो गया, x is equal to हो जाएगा 7 minus 1, that is 6. सेकेंड वैल्यू लिया, B की वैल्यू लिया तो 4 and इधर B and 4 is equal to 5 plus y by 2, 5 plus y by 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जाएगा, ये इक्वल टू 5 प्लस y, ये 5 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 3 इक्वल टू y. तो सो द वैल्यू ऑफ x
is 6 and y is 3. Answer. Is it clear? Okay. क्वेश्चन नंबर 7, इसका हिंट ले लें, बताएंगे नहीं, हिंट ले लेंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 7 से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। AB is the diameter of circle. You know that every diameter passes through the center of circle. AB is the diameter of circle, O is center. Here it is given that circle whose center is 2 minus 3. The coordinate of center is 2, minus 3. It is given. And B is 1, 4. 1, 4. Find the coordinate of A. So let coordinate of A is xy. xy so here O is the midpoint of AB. So O is the midpoint ऑफ AB का मिड पॉइंट है, तो सो इसका फर्स्ट एब्सिसा जो होगा वो 2 इक्वल टू होगा x1 प्लस x2 x प्लस 1 बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इक्वल टू x प्लस 1, 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे 3 इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और इसी तरह से y की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, that is minus 3 equal to y plus 4। ये हो जाएगा minus 3 equal to y plus 4 y plus 4 by 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि A एंड B आर -2 -2, A एंड B आर A -2 -2 एंड B that is 2, -4। A and B are इतना respectively find the coordinate of P such that AB is equal to 3/7 AB is equal to given है, given AB is equal to 3/7 AB such that P lies on AB। P जो है AB पर है, P कहाँ है AB पर, तो लेट P यहाँ है, P यहाँ है और AB अपॉन AB ये आपको दिया गया है कि यहाँ से थोड़ा सा देखें AB को इधर ट्रांसफर करेंगे सॉल्यूशन में। AB is equal to 3/7 AB को इधर ट्रांसफर कर देंगे आप, तो ये हो जाएगा, ट्रांसपोज कर देंगे तो AB अपॉन AB is equal to 3/7। हालांकि ये रेशियो है, ये सब इक्वल नहीं होता है, AB इक्वल टू 3 और AB इक्वल टू 7 होगा नहीं, रेशियो है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि AB जो है 3 पार्ट है और AB 7 पार्ट है, AB 3 पार्ट है, AB ये 3 पार्ट है और AB जो है पूरा 7 पार्ट है, तो PB जो होगा वो 7 में से इस 3 को माइनस कर देंगे और 7 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो सो AB अपॉन PB is equal to 3/4। AB 7 हो जाएगा, 7 में से इस 3 को माइनस कर लेंगे, 3 पार्ट माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग 4 पार्ट बचेंगे। क्लियर हो गया? तो ये 4 पार्ट बनेंगे तो 3/4। तो ये m is equal to 3 हो जाएगा, m is equal to 3 मिल गया और n is equal to 4 मिल गया। इसी का कोऑर्डिनेट फाइंड
फाइंड करना है, बहुत ईजी है, आपको फाइंड कर लेंगे। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज एक्स वाई है, तो एक्स इक्वल टू होता है my2 mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। The value of x is x, m that is 3, x2 this value 2 plus n 4, x1 that is minus 2 divided by m plus n means 3 plus 4। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू भी आप कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हो, my2 plus my1 divided by m plus n। You have putting the value of m, n, y2, y1 which are given, y1, y2, m, n, these all values are given। ये आप पुट करेंगे, पुट करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। देन यू राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज xy, xy की वैल्यू जो होगी वो लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 सिमिलर है, फिगर बनाएंगे। ये कह रहा है कि अगर कोई लाइन है जिसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 4 इक्वल पार्ट में मान लीजिए ये पार्ट 4 इक्वल पार्ट है, तो 1:1:1:1 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो 1:1 का रेशियो होगा। अगर हम इसको देखें तो इधर 2 का रेशियो हो गया, इधर 2 का रेशियो हो गया, तो ये पॉइंट होगा वो ए बी का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट होगा। तो ए और बी का कोऑर्डिनेट लेकर उसका मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिएगा ये पॉइंट जब मिल जाएगा तो ये पॉइंट जो है इसका मिड पॉइंट है, ए और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का यहाँ भी निकाल देना है, इसके और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ, अब फिर इसके और इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रोम्बस के 4 वर्टिसेस गिवन हैं, रोम्बस के 4 वर्टिसेस गिवन हैं, उसका एरिया निकालना है। तो रोम्बस एक फिगर बनाएंगे, फिगर बना के उसके ऑल 4 वर्टिसेस आप लिख लेंगे, लिखने के बाद उनके डायगोनल को ज्वाइन करा दीजिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूले से AC निकालिएगा, AC इज 1 डायगोनल, अब BD इज अदर डायगोनल, AC निकालिएगा। फिगर हम बना देते हैं, ये देखिए A, B, C and D, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, कोऑर्डिनेट्स इनके दिए गए हैं 3 0, A का 3 0, B का कोऑर्डिनेट 4 5, C का कोऑर्डिनेट -1 4 and the coordinate of D is -2 -1 -2 -1। So first you find AC, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन 3 0 एंड -1 4, डिस्टेंस बिटवीन 3 0 एंड -1 4, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे तो AC निकल जाएगा, आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाला जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकेंड, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन BD, तो डिस्टेंस BD इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 4 5 एंड -2 -1, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर लेंगे। आप देन लास्ट में आप लिख लेंगे एरिया रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 into D1 into D, that is 1/2 into AC and into D। ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल कर इसको पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, और यहीं फिनिश करते हैं, ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया। नेक्स्ट डे कोई प्रॉब्लम होगा तो वो देखा जाएगा, क्लास में आप पूछेंगे, उसका भी वीडियो हम आपको डाल देंगे बनाकर। और RS अग्रवाल भी सॉल्व करेंगे, RS अग्रवाल में भी जो प्रॉब्लम आएगा उसको आप यू कैन आस्क, आप पूछने के लिए स्वतंत्र हैं, पूछें। जितना ज़्यादा क्वेश्चन उठाएंगे आप, जितना ज़्यादा टीचर के साथ आप डिस्कशन करेंगे, योर नॉलेज इंक्रीज एंड इंक्रीज, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। ओके।